So, welcome everyone. Welcome to this amazing web development course. So, let's begin with the presentation. Share the presentation. Okay, so this is going to be an amazing journey of web development. We are going to learn full stack web development. So, let's begin this journey with some excitement. Can you show some excitement in the chat box, guys? Okay, now continue to next slide. So first of all, let us introduce ourselves. I am Vaibhav Kumar Singh, and web development is my passion. And I'll guide you throughout this journey. And not only me, along with me, Pranay Raj is also there, who is master in web development, I guess, Hello everyone, I am because Pranay. he's the one. We both Let are me. first year CSA student at Chandigarh University. We both are very much interested in the web technologies, the full stack web development, and all those things which we will be discussing today. Now, let's continue. And must tell everyone that Pranay is the one who inspired me to learn so fast. So he is a very good mentor. So we will be learning full stack web development in this journey. And And one thing let's more, like in the old lectures, I will be not speaking only in the English. मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ क्योंकि I'm not that much comfortable in English. So are you guys comfortable in Hindi? please tell in the chat box who is Yes. not comfortable in Hindi. Aarthi Guru is not comfortable in Hindi. Okay, bro, I will try my best to explain those concepts in English. So let's continue today. Actually, today we are going to discuss what we are actually going to learn, what we are actually going to build. All. So let's start. First of all, we are going to learn about the full stack web development. This is what we are going to learn. Let's break this thing that what actually include in the full stack web development में होता क्या है, किन चीज़ों को हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में मतलब उसके अंदर हम लाते हैं. वेब एक्सप्लेन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रंट एंड के बारे में. फ्रंट एंड क्या होता है? जो फ्रंट में हो वो फ्रंट एंड है, जो क्लाइंट को शो करता है, यूजर को शो करती है वेबसाइट, वही फ्रंट एंड है. तो फ्रंट एंड में हम कुछ जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको हम आगे अभी एक्सप्लेन कर रहे होंगे. अगली जो चीज़ है वो है हमारी बैक एंड. बैक एंड में हम आपको पूरा सर्वर मैनेजमेंट सिखाएंगे, सर्वर में क्या होता है वो सिखाएंगे, और सर्वर को मेंटेन कैसे करते हैं ये भी सिखाएंगे. आज हम सीखेंगे वन डेवऑप्स. मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डेवऑप्स. अब अगर आपको ये वर्ड्स जो है बज़वर्ड्स लग रहे हैं, अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं. इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस ट्रेनिंग के अंत तक आपको इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा एक कंफर्टेबल इंट्रोडक्शन जरूर हो जाएगा. तो डेवऑप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है Pranay, वेब can you डेवलपमेंट. repeat that? Because Pranay, ओके ओके. can you please repeat the DevOps part? Actually, DevOps is a very important tool in nowadays. और ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ डेवऑप्स को सीखना आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हम अभी जानेंगे कि आखिर डेवऑप्स है क्या और उसके अंदर कौन कौन से टूल्स जो हैं वो आते हैं. इन तीन चीज़ों के अलावा एक एक्स्ट्रा है जो कि है UI UX. ये मेरा फेवरेट पार्ट है. आई एम रियली वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग वेब एप्लीकेशन. सो इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स जैसे कि फिग्मा लाइक टूल्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ अपने पर्सनल टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो कि मेरे वेबसाइट्स मेरे प्रोजेक्ट्स में एक यूनिकनेस लाती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट एंड. इन Excuse फ्रंट me. एंड. यस. Is recording on? Yes, yes, recording is on. Don't worry about Okay. it. Okay. Thank you. इन द फ्रंट एंड पार्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक जो कि है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट. अब HTML और CSS बहुत सारे लोगों को आता है या बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा और जावास्क्रिप्ट भी बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा. बट हम इन तीनों चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे.
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के तरीके माध्यम से और कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स के तरीके से। जावास्क्रिप्ट जो कि एक्चुअल में जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, जो एक्चुअल फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, जो कि बेसिकली कुछ लाइब्रेरीज या कई फ्रेमवर्क्स के तरीके से होता है, जैसे कि रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस। तो इन चीज़ों का जो सबसे बेस चीज़ होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का पूरा अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इसके बाद है बैकएंड में। अब बैकएंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट, एपीआई डेवलपमेंट। इन सारी चीजों को हम नोड जेएस के यूज से सीखेंगे। अगर नोड जेएस के बारे में आपने पहले सुना है या नहीं सुना है, डजेंट मैटर, मैं आपको बताऊंगा कि नोड जेएस से किस तरीके से आप डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआईज को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स जो टाइप के चीज होते हैं उन चीजों को आप कैसे बना सकते हैं, जो कि बेसिकली ये जो सॉकेट्स आया होता है उनसे बनाया जाता है। इसके बाद जो है वो हम डेवऑप्स के बारे में सीखेंगे, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में वेब डेवलपमेंट में है। जिसमें सबसे पहले आता है कि गिट और गिटहब। ये गिट और गिटहब है क्या, और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे हम कोलैबोरेशन, जब दो प्रोग्रामर्स आपस में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक ही प्रोजेक्ट पर एक सिंगल टाइम में। फिर हम AWS के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम अपने चीज़ों को होस्ट करना सीखते हैं। और उसके बाद है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जो कि CI/CD। अब ये थोड़ा एक बहुत ही फैंसी चीज़ है, लेकिन मैं आपको इन कॉन्सेप्ट्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आए और आप फर्दर एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड रहें। इसके बाद है UI/UX, जो कि मैंने पहले बताया कि फिग्मा के हेल्प से, फिग्मा एक टूल होता है, एक ऑनलाइन टूल होता है जिसमें हम वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये फिग्मा क्यों इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपर के लिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और फिग्मा को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कैसे डिज़ाइन करते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि ज़रूरी होता है इन चीज़ों को सीखने के अलावा। जो कि सबसे पहला चीज़ है कि जो कोड हम लिखते हैं वो कितना अच्छा और रीडेबल कोड लिख रहे हैं। हम ऐसा कोड लिखें जो केवल खुद को समझ में आए तो वो कोड सही नहीं होता। हमें ऐसा कोड लिखना चाहिए जो हमारे साथ हमारे टीममेट्स को भी समझ में आए, एक बहुत ही रीडेबल कोड हो। दूसरा, एक बहुत ही रीयूजेबल कोड हो। अगर आपने रिएक्ट के बारे में सुना है तो रिएक्ट इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट रीयूजेबल कोड्स। वहाँ पर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं जो कि हम बहुत ही आसान से दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हम सीख रहे होंगे कि किस तरीके से रीयूजेबल कोड को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाए। उसके बाद है कि जब हम बहुत बड़े किसी कोड पे काम कर रहे हो, कोड बेस पे काम कर रहे हो, तो कैसे हम उनके फोल्डर स्ट्रक्चर को बढ़िया कर सकें। अब ये एक चीज़ है जो कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में मैं नहीं देखता हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कोड स्प्लिटिंग, इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। वैभव। So projects are going to be the backbone of this overall course. We will build some amazing projects that will also add something to your CV. और ये बस ऐसे ही प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे कि जैसे आपने कोई ट्यूटोरियल देख लिया, उसको हाँ। कॉपी कोड कर दिया और फिर आपने उसको अपने ट्यूटोरियल में डाल दिया। ये सारे कोड्स को आप अपने खुद से लिखेंगे, हम आपको पूरे उसमें गाइड करेंगे और आपके यूनिक प्रोजेक्ट्स बनेंगे हर किसी के। तो इसमें आपको अपने सीवी को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अब मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, आपको आईडी ही सेटअप करना सिखाता हूँ। सबसे पहले बता दूँ। वैभव, शेयर योर स्क्रीन फर्स्ट। यस, इज माय वॉइस क्लियर प्रणय? Yeah, your voice is clear, but there is some background noise. जस्ट अ मिनट, इज इट ऑल राइट नाउ? No, not at all. Still, there is someone speaking at your background. वेट अ मिनट। You can use the crisp. Yes, Dhruv, what you were speaking? You can use crisp. Okay. व्हाट इज क्रिस्प एक्चुअली?
It is used to remove the background noise. Oh, okay, Okay, okay. we will take care the next time. Thank you for suggestion. So, is my voice clear now, Pranay? Yes, yes, your voice is clear now. You should present. Okay. So, is my screen visible? No. Yes, yes. Now it's present. Yeah, it's visible now. All right. So you have to first of all go to VS Code. You have to search on Google VS Code, and the first website you will see is the official website of Microsoft Visual Studio Code. Basically, what it is just like a code text editor. आपने देखा होगा नोट पैड होता है, तो ये सब क्या टेक्स्ट एडिटर होते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस्ड, इसमें थोड़े से फीचर्स हैं और हम उस नोट पैड को यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स अपनी कोडिंग के लिए, इसको लेकिन हम एक AI पावर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे ही अच्छे, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं जो हमारे कोड लिखने के तरीके को बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत ही फास्ट बनाते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटपैड में आपको कंट्रोल मतलब आप फाइंड भी करना चाहते हैं कुछ, तो आपको कंट्रोल एफ का फीचर वहाँ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको इतने फीचर्स मिलते हैं जिसका मतलब नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, तो थ्रू आउट द खैर VS कोर्स। कोड के बारे में जब हम कोड मतलब एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो और भी इसके बारे में, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम धीरे धीरे करके जानेंगे। And we will also talk about its awesome extensions. So you can download the exes or deb from here, and you can अकॉर्डिंग टू योर easily install. OS, So I have already installed it. Let me show you. And you can also use any cloud IDE like Replit or Gitpod. They offer nice environment. if you guys have any problem in installing of the VS Code, you can ask in the chat box later in the WhatsApp group. So I hope my screen, VS Code is visible. Yes, you're visible now. Let me open a new folder. So this is how the VS Code looks. You can change themes here and do various things. So we can create new files from here like this. And this is VS Code. I hope everybody got it. People are still joining. अब अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लो इस कोर्स के बारे में। माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अभी कोई सा भी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करना है, जो भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना हम होगा जैसे जैसे आगे अपने सब्जेक्ट टॉपिक्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम नए एक्सटेंशंस के बारे में आपको बताएंगे और आप वहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट VS कोड से करना इजी होता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा, बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से हमारा काम हो जाता है, rather देन कि जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैपटॉप चाहिए होता है और काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं, बट वेब डेवलपमेंट इज़ रियली वेरी इजी टू हैंडल। आई मीन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेब डेवलपमेंट इज़ रियली वेरी इजी। तो कोर्स ड्यूरेशन एक्चुअली अभी तो हम इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 2 मंथ्स 1.5 मंथ्स इतना अप्रोक्स लेके चलिए, और डेली आपकी 1 आवर की क्लास होगी। ये लेक्चर्स 5 मतलब किसी कॉलेज लेक्चर्स के टाइप नहीं होंगे, यहाँ पर हम इंटरेक्शंस करके बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअल कोड को समझ रहे होंगे। हर लोगों को कोड समझना, मैं फोकस इस चीज़ पर करूंगा कि हर लोगों को सब कुछ समझ में आए एक्चुअल में कैसे कोड होता है और किससे अच्छे तरीके से कोड लिख सकते हैं। no no paid software will be used in this throughout this course. All software will be open source
either open source or free, so don't worry about that. और क्लासेस 5 days a week सही रहेंगी ना? Yes. और माइक ऑन करके अगर बोला करोगे तो तुम्हारा भी फायदा है, उससे क्या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बिल्ड होंगी। ओके, from where you had Devang's eh, asking question. so From Devansh, where you had to actually what learn about the web development? what happens is we learn from various resources. So, Devans, I am learning web development since last 2 years. So I had learned it from the different sources because no one was to guide me, and that why I like मुझे बहुत ज़्यादा ही समय लगा था इस चीज़ को सीखने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ यार कि बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं गाइड करूँ। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ये जितने भी प्रेजेंटेशंस होंगे, कोड होंगे या फिर बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह जो भी चीज़ होंगे वो आपको गिटहब पर प्रोवाइड कुछ करेंगे हम। प्रोवाइड कर दी जाएगी, और कुछ नोट्स होंगे जो मैं खुद से बनाऊंगा वो आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको फर्दर कभी रिवीजन वर्क में हेल्प करेगी। और इसके और साथ साथ आपको हम बीच बीच बहुत में सारे एक्सटर्नल हाँ, एक्सटर्नल रिसोर्सेज की भी वो दिया करेंगे हम। एक लिस्ट दिया करेंगे जिसमें बहुत सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज होंगे जहाँ से आप फर्दर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी बता सकते हैं जो आप चाहें तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सीख सकते हैं। थैंक यू प्रांजल, थैंक यू। और अगर कोई जानना चाहे कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ये हम फ्री कोर्स क्यों कर रहे हैं, पेड क्यों नहीं कर रहे, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि हमको क्या फ्रेंड्स बनाने हैं। फ्रेंड ने मुझको कोड करना सिखाया और आज हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो कोड इज़ द रीज़न वाई वी आर फ्रेंड्स। तो हमें और फ्रेंड्स बनाने इसलिए हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो समर एंजॉय करनी थी, तो हमने सोचा कैसे कोड करके सिखा देते हैं। तो इसलिए ये कोर्स हम कर रहे हैं। Yes, we are already, so that's why we are increasing our friendship, enhancing the bond of friendship. टाइमिंग वैसे यही सही रहेगा ना, सब बता दो एक बार। हाँ, टाइमिंग तो यही रहेगा। एनी मोर क्वेश्चंस? कितने दिनों तक चलेगा ये कोर्स सर? पहली एक्चुअली बात मैं तो कह नहीं सर नहीं है सकता, यार। लेकिन हाँ सर नहीं यार। एक्चुअली मैं कंफर्म होके नहीं कह सकता, बट मिनिमम 1 मंथ तो टाइमिंग लगेगा ही। आई होप कि आप सभी के समर वेकेशंस कॉलेजेस में चल रहे होंगे। नहीं यार, हमारे कॉलेज कहाँ अभी, वो पुणे यूनिवर्सिटी वाले नहीं है अभी तक। हमारे तो चल रहे एग्जाम्स वगैरह भी। तो एग्जाम्स के बाद तो सेमेस्टर चल रहे छुट्टी हैं मिलेगा ना? सर अभी क्लासेस चल रही है। थर्ड ईयर वालों को कहाँ छुट्टी रहेगी? अभी शायद थर्ड ईयर वालों की छुट्टियां हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर वालों का शायद हमारा तो जुलाई एंड में खत्म होता अच्छा, थर्ड ईयर का कौन है यहाँ पर? है। मैं फर्स्ट ईयर का हूँ भाई। तुम्हारा बैच में सोनू। अच्छा सोनू, अच्छा तुम थर्ड ईयर के, ओके। मतलब आप थर्ड ईयर के, सॉरी। तो किसी को मतलब कंफर्टेबल है ना क्लास लेने में, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी अगर वो भी चाहिए तो। वो यार अपलोड कर देना कहीं तो, मतलब मेरे तो शायद एग्जाम्स वगैरह चालू है, एक दो मिस भी हो सकते हैं, मतलब लेक्चर्स वगैरह नहीं। अच्छा, और कोई किसी और चीज में करता है क्या, मतलब कोई कोडिंग सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता हो? हाँ, सीपी कर लेता हूँ मैं, मतलब थोड़ा अच्छा, थोड़ा। एक्चुअली देवांश, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 1 महीने के अंदर ही पूरा वेब डेवलपमेंट सिखा दूंगा, हम लेकिन मैं कह रहे इतना हैं कि कह सकता हूँ मिनिमम कि इतना तो लगेगा ही। हाँ, मिनिमम इतना लगेगा ही। इसमें मैं बेसिक्स इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर हमारे पास और भी टाइम रहा
तो हम इसमें और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जिससे कि जैसे मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, जैसे बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजेस भी होते हैं, जैसे कि एनिमेशंस के बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, फिर बहुत सारे कोड पैटर्न, आई मीन बहुत सारे अच्छे चीजें होती है, जैसे कोड पैटर्न्स वगैरह हो गए, इन चीजों को हम सीख सकते हैं अगर लोग हमारे पास आपको टाइम क्या है। है, मतलब यूट्यूब पर आप CSS सीख लोगे, पर उसको अप्लाई कैसे करना है ये तो कोई बताते ही नहीं है ना। कि हम कोई प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारे दिमाग में भी तो आना चाहिए कि हम ये क्यों लगाएं। अगर आप जैसे कोर्सेज लेते हैं तो वहाँ पर आपके कोड में कोई हेल्प करने नहीं जाता है, बट अगर आप कहीं कोड में फंसते हो तो हम आपके हेल्प कर सकते हैं। एफिशिएंट कोडिंग बहुत जरूरी है। हाँ, सिर्फ एक्चुअली CSS भी पता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत सारे बिगिनर्स के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सही से समझ नहीं पाते। अगर फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड उनके हो गया, ये कॉन्सेप्ट को सब अच्छे बहुत। से समझा जाए तो वो काफी इजी बन जाता है और फिर आगे कभी प्रॉब्लम नहीं करता है। यार इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग बहुत यार। सारे स्टूडेंट जो है मैंने देखा है कि अगर वहाँ पे यहाँ पर कोई CSS को अगर पढ़ा हो तो बहुत सारे स्टूडेंट CSS को स्किप करके टेलविंड CSS या फिर बूटस्ट्रैप की तरफ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जैसे बोलते हुए सुना है कि यार CSS काफी हार्ड था तो टेलविंड हम यूज करते हैं, बट एक्चुअली ये गलत है। हमें टेलविंड बहुत अच्छी चीज है, बूटस्ट्रैप बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो कोर CSS होता है उसे भी सीखना बहुत जरूरी होता है। और सेम अप्लाई होता है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस के लिए। रिएक्ट सीखते वक्त बहुत सारे बच्चे जावास्क्रिप्ट नहीं सीखते हैं, ये और बहुत यही सारे सेम बच्चों का। अप्लाई होता है HTML पर भी। लोग बाग HTML को भी नहीं सीखते कई बार, या मतलब इग्नोर कर देते हैं कि इसमें क्या है, पर वो HTML है जो आपके रिएक्ट तक काम आएगा। हाँ, रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट का और HTML का ये मेनली बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है, मतलब उसका पार्ट होता है। बेसिकली हम आपको जो भी चाहिए ना वो इम्पोर्टेंट ही है, हाँ, तो उसको नेगलेक्ट ना करना कि ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज की क्लास है तो आज ही देख लो, ये मतलब मेरा सजेशन रहेगा। क्योंकि हम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स असाइन करेंगे, आपको उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, फिर आप कोलैबोरेशन सीखोगे कि कैसे आप अपने कोड को गिटहब पर पोस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के कोड को मर्ज कर रहे हो, ताकि आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में भी सीख सको और फर्दर फ्यूचर में आप किसी अच्छे। और एक मेगा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसको सब लोग पूरा मिलके एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होगा गिटहब पर। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के आइडिया सोच के रखे हैं, अगर आपने सपोर्ट किया तो हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम जरूर करेंगे। और आपके पास भी कोई आइडिया हो तो बताइए जरूर। ऑल आइडियाज आर वेलकम। नहीं प्रांजल, अभी से कुछ नहीं पढ़ना है, बता तो देते हैं। अगर किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल रोहन, वी विल गिव आवर 100%। Okay, Vaibhav, I think we should end the meeting now. Yes, we will teach you how to host, how to get a domain. Yeah, I will teach you about the CI/CD and CI/CD pipelines. Yeah, I will teach you those concepts. At least I will teach the basics of them, because it might be too difficult for someone, but I will teach you the basics. So I hope all of your doubts are cleared. कोई और डाउट हो तो जल्दी से बता दो, नहीं तो फिर एंड करते हैं आज की मीटिंग, इतनी ही रखते हैं फिर। सर स्टार्टिंग से कौन सी टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा? Starting HTML। में HTML, पहले HTML and तो हम आपको CSS. बताएंगे कि एक वेबसाइट वगैरह काम कैसे करती है। ये बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट होगा। जावास्क्रिप्ट As soon as कि जब हम HTML CSS को कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली हम क्या HTML और CSS को थोड़ा पैरेलली बताएंगे, क्योंकि फिर क्या, अगर CSS बताने गए हाँ, ये मैंने उसके लिए बहुत भी सारे फिर हमको HTML कोड लिखना पड़ रहा है, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ ये पर। मैंने बहुत सारे कोर्सेज में ये एक प्रॉब्लम देखा है। वो क्या करते हैं, वो पहले HTML पूरा बताते हैं, फिर CSS पूरा बताते हैं। इसमें क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ देखते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम बहुत सारी चीज़ों को पैरेलली सिखाएंगे,
और शुरुआत से ही किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, ताकि हमेशा एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होते रहे उन कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ। ओके, सो आप में से लिंक्डइन कितने लोग यूज करते हैं, एक बार चैट में बता देंगे? यस ब्रिजेश, ऑफ कोर्स। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, आप सब लोग फीडबैक दे देना आज के सेशन का। लिंक्डइन पर हमको टैग कर सकते हो आप, हमारी लिंक्डइन आईडीज मैं भी डाल देता हूँ उसमें। इससे क्या थोड़ा कनेक्शन वगैरह बनाते हैं अपन भी लिंक्डइन पे एक दूसरे से। हाँ प्रांजल, एक मिनट अभी देता हूँ। प्रणय अपनी आईडी डाल दीजिए। ओके, बाकी किसी को अगर सीरियस डाउट हो तो वो पर्सनल में भी पूछ सकता है, अगर वो मतलब ग्रुप में नहीं पूछना चाह रहा है तो। यस कुणाल, we will be discussing about Stack. Means we will learning Stack. of course Stack is the most famous and I guess the best. It is actually full stack. So your question is somewhat confusing. So here are our IDs. You can connect with us and drop a feedback for us on LinkedIn. Okay. Okay, fine, guys. You may now leave the session if you have no doubt. No, we will go with the React.js. if अगर समय रहा तो हम Next.js की ओर देखेंगे, but अभी उसके प्लान्स नहीं है। we will focusing on the React.js. React.js खुद में एक बहुत ही बड़ा चीज होता है। एक्चुअल में React.js ज्यादा यूज होता है, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब Next.js भी अच्छा है, बहुत हाँ, अच्छा है। बहुत सारे लोग React.js सीखते हैं फिर Next.js की जाते हैं, लेकिन वो डिजाइन पैटर्न नाम के चीज को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, जबकि वो एंगुलर काफी नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। लीजेंड टैग एंगुलर नहीं करेंगे। एंगुलर और रिएक्ट एक दूसरे के, मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो एंगुलर की जरूरत नहीं है, और एंगुलर कर रहे हैं तो रिएक्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि उनको जो अपना पहला लैंग्वेज सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं ये बता दूं कि वेब डेवलपमेंट के लिए आपको किसी और लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। और वेब डेवलपमेंट मैं कहूँ तो यार बहुत ही आसान होता है, बिगनिंग में वो आसान होता है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो आप बिल्कुल ओपनली, फीसिबल भी है। आप एक्चुअली इसको मतलब क्या, आपको ज्यादा सेटअप वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि यहाँ पर आप कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो जो कि आपको कूल लगता है, यार क्या बात है हम कुछ बना रहे हैं। जबकि आप अगर C++ सीख रहे हो या फिर आपने सीखा होगा C++, तो उससे एक एक्चुअल एप्लीकेशन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन एक जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS के। यहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान होता है CSS के C++ के कंपैरिजन में। लीजेंड टैग नाम बताओगे कि तुम अपना, मतलब कौन सी हैकाथन की बात कर रहे हो तुम, मेरे को समझ में। स्मार्ट इंडिया हैकाथन? Yeah, we are selected for the Smart India Hackathon. We are We are waiting in for the the final. pre-screening round. Yeah, we are waiting for the final confirmation from the government. Okay guys, you may leave the session if you have no doubt. Thank you, Pranjal. Thank you, Pranjal. So that's it for today, guys. See you tomorrow. Bye. Dhruv, you can check out our GitHub. We will also drop the GitHub link.